इसका जो फंक्शन है वो कुछ ना कुछ आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, एफ एक्स या एफ एक्स वाई बोल दो। अगर लीनियर आपका कोई फंक्शन है तो उसके लिए जैसे लाइन की इक्वेशन थी, तो y की आपको corresponding देखो x की टर्म्स में वैल्यू आपको मिल जाएगी। मतलब हर x की वैल्यू के लिए you will get a corresponding y value, right? And similarly here for each value of each pair of rather value of values of x and y will get the value of r. तो ये जो y is equal to एफ एक्स या एफ एक्स वाई, ये वाले जो फंक्शंस होते हैं आपके, ठीक है, you can write it as एक्स वाई जेड। ओके, ये जिस टाइप के फंक्शंस होंगे आपके फंक्शन एफ और जी, you have seen g is equal to fxyz। तो इस टाइप का फंक्शन होगा, दिस इज नोन एज एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन से जो कर्व्स ड्रॉ होंगे वो एक्सप्लिसिट कर्व्स इन्हें बोलते हैं हम लोग। एक्सप्लिसिट कर्व्स के जो ये एक्सप्लिसिट फंक्शंस जो है जो डिफाइन कर रहे हैं उस कर्व को, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शंस हैं। ध्यान से सुनो, एक्सप्लिसिट वाले आई एम राइट इट डाउन समवेयर। एक्सप्लिसिट जो कर्व्स हैं दे यूज एक्सप्लिसिट फंक्शंस। जो पॉइंट आप प्लॉट कर रहे हो वो कोई फंक्शन ही यूज करके आप प्लॉट करोगे ना कर्व पे। कर्व या लाइन सेगमेंट्स हैं क्या, सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपने ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, कंटिन्यूअस आपके स्पेस में यू हैव अ सेट ऑफ पॉइंट्स जिनको आप किसी भी एक फंक्शन को यूज करके उनकी आप उन्हें प्लॉट करते हो, राइट? तो जैसे फर्स्ट वाला था आपके पास y is equal to mx plus b, लाइन की इक्वेशन थी। अब for each value of x we get a corresponding value of y. You can easily plot all the points which are defined by this particular function. So in that case, we get a line which will have the characteristics which will be governed by these two values m and b, right? So in this case, you're going to have an explicit curve defined for you. So these are defined by your explicit functions. And the second point to remember is that explicit functions जो y is equal to f x वाले टर्म के होंगे, फॉर्म के होंगे, या फिर सम g is equal to f x y z फॉर्म के जो होंगे कर्व्स, तो वो explicit functions हैं, single valued है, single valued explicit. If you get multi-valued functions, तो set of points आप curves को define कर रहे हो using a function, अगर आपको multi-value मिलती है, उसमें multiple values मिलती हैं, तो in that case it will be an implicit curve. For example, this you can see this is the equation of a circle, x square plus y square is equal to r square जो है वो circle की equation होती है when you have the center of the circle at the origin. Shifted circle है तो x naught y naught को उसका center होगा, तो उसकी equation किस पर्टिकुलर इक्वेशन से आप डिफाइन करोगे, उस सर्कल को ड्रॉ करोगे। उस सर्कल को ड्रॉ करोगे मतलब एक x की वैल्यू के लिए देखो आपको दो y की वैल्यूज मिल रही हैं, राइट? या एक y की वैल्यू के लिए आपको दो x की वैल्यूज मिल, तो आपको मल्टीपल वैल्यूज मिल रही हैं। दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज नोन एज फंक्शन। मल्टीपल वैल्यू जो मल्टी वैल्यू फंक्शंस होते हैं we use implicit functions to describe each and every point which is lying on the curve. Isn't a circle, you can say, it's joined by two curves. Two segments circle को join करके it's also curved only. Curved segments ही हैं, so मिलके बना है, right? Third category is your parametric curves, right? पैरामीट्रिक में आपके जो x और y है, अगर मैं 2D की बात करूँ तो टू dimension में you have your each point in the 2D plane. Suppose this is a point, this can be defined in the 2D plane by its x and y coordinates, right? Now what I can do is I can represent these x and y so as to, is there any way to represent them so that I can be independent of the coordinate system? Of course there is. I can represent these using a parameter. Now I have introduced a parameter which I will call as a parametric value. ठीक है, एक I'll take a parametric variable. It could I can represent it by t, or I can also represent it by, okay, you have seen examples of parametric functions before. Again, try to remember in Liang-Barsky we had calculated, and even in the vectors PDF that I gave to you,
You had seen the derivation of parametric equations for a straight line and even for vectors also, right? So in that case, what we were doing, we had defined or we had derived a set of equations for our x and y values in terms of that parameter. And the value of this parameter was in the interval 0, comma 1, right? Inclusive. So the value of u was changing from 0 to 1. जैसे जैसे u की वैल्यू हम लोग चेंज करते जा रहे थे, हमें उस पर्टिकुलर लाइन के लिए अलग अलग पॉइंट्स मिलते जा रहे थे. तो दिस इज माय पॉइंट P1 एंड दिस इज माय पॉइंट P2. मैंने इनके बीच में लाइन ड्रॉ करी, तो u इज इक्वल टू 0 पुट करने पे मैंने x और y की वैल्यू जैसे यहाँ t में निकाल दी. तो वैसे ही ये इसको या तो आप t लो या पैरामीटर लो. तो अब देखो दोनों x और y की जो वैल्यूज हैं, दे डिपेंड ऑन अ कॉमन पैरामीटर व्हिच इज t in case of these questions, in case of these equations, right? मैं इस e की वैल्यू दोनों इक्वेशन में अगर मैं 0 पुट करूँ तो मुझे x और y स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएंगे, ये वन के पॉइंट्स. अगर मैं u इज इक्वल टू 0 पुट करूँ एंड इफ आई पुट u इज इक्वल टू 1, तो मुझे ये P2 पॉइंट मिल जाएगा. ठीक है. और इसके बीच में अगर मैंने 0.5 पुट किया, u इज इक्वल टू 0.5, तो 0.5 पे मुझे 20 का पॉइंट मिलेगा, राइट? 0.5 के लिए मुझे ये u की वैल्यू मैंने हाफ रखी है, तो मुझे x और y जो है, जब मैं यहाँ t या u की वैल्यू यहाँ पे हाफ पुट करूँगी, तो आई विल गेट द x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस मिडिल पॉइंट जो इस लाइन के बीच में लाई कर रहा है. अगर मैं 1/4 रखती हूँ तो मतलब इस लाइन का 1/4 यहाँ पे है, 1/4. 0 अगर यहाँ दे रहा है, this is your point which you obtain after putting the value of u as 1. So 1/4 जब मैं रखूँ, so this is the point which I will get after putting the value of u as 1/4. मतलब 1/4 distance from the first point and 3/4 distance from the second point. तो रेशियो में चल रहा है. कीप दिस इन माइंड. अभी बेसिक फर्स्ट टाइम चाहिए एनिमेशन, तो उसमें आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा एक्चुअली. हम जहाँ टैंजेंट्स का जो कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे आगे धीरे. मेन पॉइंट इज थ्री टाइप्स ऑफ कर्व यू हैव. पैरामीट्रिक में आपकी जो एक्स वाई और अगर 3D की बात करें तो जेड की भी कुछ इक्वेशन होगी, which will be z0 plus z1 z0 plus z1 minus z0 into t or u, whichever parameter you choose. ओके. तो पैरामीट्रिक फॉर्म में आपकी एक्स वाई जेड की तीनों की वैल्यूज आ गई. अब एक इस टी की वैल्यू जो आप जो भी रखोगे उसे कोरस्पॉन्डिंग आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिलेगी. ठीक. तो ये जो तरीके के कर्व होते हैं, और रिमेंबर ये जो पैरामीटर टी है या यू जिसे आप ले रहे हो, उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 तक आपकी वैरी करेगी यूजुअली, राइट? सो these types of curves which use parametric equations, parametric functions to describe the set of points which are lying on the curve are known as parametric curves. Alright. Now, why are we using parametric curves? Can you tell me the Bezier की equation अगर आपको अगर हम चलो we will discuss it. Bezier curve is also a parametric curve only. Bezier, B-spline, Hermite, जितने भी curves हैं हम लोग parametric curves ही, ये हमारे सारे parametric curves हैं. और पैरामीट्रिक कर्व्स ही हम लोगों ने क्यों लिए हैं? फर्स्ट, ये वेरी फ्लेक्सिबल और मतलब इनको फंक्शंस डिफाइन करने के लिए आपको नहीं चाहिए. आपका काम जो रहता है सिर्फ और सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स निकालने का रहता है. ठीक है. उसके हिसाब से आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो कर्व की. कोफिशिएंट्स निकालोगे ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रोल पॉइंट्स व्हिच आर स्पेसिफाइड. कंट्रोल पॉइंट्स अगेन दे आर गोइंग टू ऑल्टर द शेप ऑफ योर कर्व. कैसे अभी देखेंगे, राइट? These curves can be multi-valued with respect to any coordinate system, remember, parametric. इसलिए you have a certain degree of independence. Parameter count generally gives the object's dimension to, and coordinate functions
these are the four things that we have discussed. I hope control points जो आपके curve की shape को govern करेंगे. Dots है आगे आएगा. Control points जो इस curve पे lie कर रहे हैं. Interpolating splines आपके याद रखो. spline क्या थे? Flexible curves जिनकी हम shape change कर रहे हैं कुछ weights वगैरह provide करके. ठीक है. So it's kind of a flexible strip which can be, shape can be altered using a set of points. तो दो तरीके के स्प्लाइंस हैं आपके पास, इंटरपोलेटिंग और अप्रोक्सीमेटिंग. इंटरपोलेटिंग अगर जो आपने कंट्रोल पॉइंट्स डिफाइन किए हैं उससे आपका, जैसे ये ब्लू वाला कर्व है, अगर एक एक पॉइंट से, अब देखो ये आपका 1 2 3 4, ठीक है, सॉरी दिस रेड कर्व, this red curve, see it's passing through all the control points, so this is your interpolating curve. और ब्लू वाला देखो फर्स्ट और लास्ट वाले से पास हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ. वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ इसी से पास हो रहा है. बाकी ये जो कंट्रोल पॉइंट्स है ये सिर्फ और सिर्फ इसकी शेप जो है उसको ऑल्टर करेंगे या इन्फ्लुएंस करेंगे, कंट्रोल करेंगे. तो ये जो आपका ब्लू वाली लाइन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एज अप्रॉक्सीमेटिंग. It's not necessary that this curve is going to pass through all the intermediate control points, but in interpolating curve or interpolating line, your curve is going to pass through the first and last and in addition to all the intermediate control points. Look at this. Bezier curves पे आते हैं. Bezier curves आपके आगे, आप जितने Bezier, B-spline, Hermite जितने भी curves पढ़ोगे, ये सारे के सारे आपके parametric curves हैं. Okay, so you have Bezier and B-spline and Hermite curves. ये इनकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, ये देखेंगे हम कैसे आती है. आज बेजियर कर्व्स को डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद एन एग्जांपल, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आते हैं क्वेश्चन जो बेजियर कर्व पे आते हैं. बी स्प्लाइन पे रेयरली आपको कंट्रोल पॉइंट लेके इक्वेशन निकालने के लिए आता है, बट वंस यू अंडरस्टैंड बेजियर कर्व को कैसे निकालना, आप इजीली किसी और कर्व के लिए निकाल सकते हो इक्वेशंस. ठीक है. एंड क्वेश्चन आता ही आता है बेजियर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है. Advantages या properties या define करने के लिए, properties are very important, so we listen very carefully. You see, दो चीज़ इसमें बहुत important है Bezier curve में. First is a control point और दूसरा जो हम concept यूज करेंगे tangents का. क्या continuity define करने के लिए joining points पे. मैंने कहा था अगर complex shapes जो हैं अगर आपको वो draw करनी है तो आप उनको draw कर सकते हो using by gluing together several pieces of curve segments as we call them. कर्व सेगमेंट्स को ग्लू कर दो, साथ में चिपका दिया आपने, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आप कर्व्स को ज्वाइन करते हो एंड यू कैन ड्रॉ एनी शेप दैट यू वांट. ठीक है ना. आपका ये डिपेंड किस पे कर रहा है कर्व. आपके पास सबसे पहला होगा कंट्रोल पॉइंट्स. कितने कंट्रोल पॉइंट्स हैं आपके पास, ये तो आपको पता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल सी यू हैव दीस टू कंट्रोल पॉइंट्स, तो उसके बीच में आपका कर्व ड्रॉ होगा. देखो सिर्फ और सिर्फ यही दो हैं और वी नो दैट अ कर्व इज गोइंग टू पास थ्रू द फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट. दो ही पॉइंट्स हैं तो दोनों से पास हो रहा है. इन दैट केस, इन केस व्हेन यू हैव जस्ट टू कंट्रोल पॉइंट, यू आर गोइंग टू गेट अ स्ट्रेट लाइन, राइट. When you have 3 points, you're going to get a curve which is something which looks something like this. तो पहली चीज है आपका जो कर्व है. अब देखो दो था, दो जब पॉइंट थे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही थी. जब 3 पॉइंट हुए तो फर्स्ट और लास्ट से तो पास होगा. दूसरा वाला देखो, एक तरीके से इसको समझो, फिजिक्स में एक आपको मैग्नेटिज्म समझाने की आयरन फिलिंग्स वाला, अगर यू रिमेंबर दैट एक्सपेरिमेंट, तो इमेजिन दिस कंट्रोल पॉइंट टू बी अ मैग्नेट एंड दीज आर द यू कैन से आयरन के व्हील्स और ये सब रखे. these या इफ यू हैव अ वायर से वेरी थिन वायर जिसका वेट अभी हम लोग नहीं लेके चल रहे हैं, so you see that this is getting attracted to it. These are stationary, these are control points are fixed. ठीक है. ये सारे के सारे 1 2 3 पॉइंट्स जो है ये फिक्स्ड है. अब यू सी अगर एक सेकंड पॉइंट पे भी मैग्नेट है
तो अब देखना कि ये दिस वायर will get pulled towards this magnet, right? Because it's going to attract this. तो इसको ऐसे समझो, जितने कंट्रोल पॉइंट्स होंगे उतने आपके पास मैग्नेट्स और उस तरफ आपके जो वायर्स हैं वो उस तरफ अट्रैक्ट होती रहेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैंने कंट्रोल पॉइंट अगर अपना यहाँ रखा तो मेरा इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा इधर, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो, मतलब कंट्रोल पॉइंट्स की पोजिशन से हम लोग इस कर्व की शेप को हम लोग डिफाइन करते हैं। डिफाइन करते हैं मतलब इसको कंट्रोल करेंगे। कर्व कर्व कैसे ड्रॉ होगा, याद करो पेंट में जब आप बनाते हो तो आपके हमेशा जैसे कर्व आपने अगर कभी या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स अगर आपने लिया है, इवन सर्कल अगर आपने अभी कभी ड्रॉ किया हो, तो आपको ये ऐसे ही सिलेक्टर्स उसके सराउंडिंग मिलते हैं। उन सिलेक्टर्स को आप ड्रैग करोगे लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन, तो आप देखो आपके ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाती है। सेम कॉन्सेप्ट है, वो सिलेक्टर्स आपके कंट्रोल पॉइंट्स थे। आपको नहीं पता था बट देयर इज अ टेक्निकल टर्म फॉर दिस काइंड ऑफ कर्व व्हिच वाज यूज्ड पैरामीट्रिक कर्व्स, राइट। ये जो कंट्रोल पॉइंट्स थे आपके, वो जो शेप गवर्न कर रहे हैं, वहाँ आप इन्हीं कर्व्स में से कोई एक यूज कर रहे हो, ठीक है। सेकंड इज पहली चीज होगी कि यू विल हैव अ नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट आई हैव n plus 1 कंट्रोल पॉइंट्स, n plus 1, ठीक है। सबसे पहला n plus 1 कंट्रोल पॉइंट्स है मेरे पास। दूसरी n plus 1 कंट्रोल पॉइंट्स के लिए मेरे पास जो पॉलिनॉमियल इक्वेशन आएगी, अब हर कर्व की आपके पास इक्वेशन होगी डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो वो जो पॉलिनॉमियल की डिग्री होगी दैट विल ऑलवेज बी वन लेस देन द कंट्रोल पॉइंट। तो n plus 1 minus 1 will be n। तो पॉलिनॉमियल मतलब कोई एक x, आपका एक्स वाई में जो भी इक्वेशन आपके पास आएगी तो दैट विल बी ऑफ द डिग्री n। मतलब अगर मेरे पास दो कंट्रोल पॉइंट्स हैं तो 2 minus 1 1 1 की डिग्री, तो क्या स्ट्रेट लाइन की लीनियर इक्वेशन है तो y इक्वल टू mx प्लस v, तो x की डिग्री कितनी है 1। ऐसे ही तीन कंट्रोल पॉइंट्स थे आपके पास, तो पॉलिनॉमियल इक्वेशन जो आप यूज करोगे टू रिप्रेजेंट और डिफाइन दिस कर्व, इट विल हैव द हाईएस्ट डिग्री एज 3 minus 2, सॉरी 3 minus 1 which is 2। तो x की जो आपकी जाएगी सबसे वैल्यू इट विल बी x2। इट कैन बी ऑफ एनी फॉर्म x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जो भी आपके पास आएगी पॉलिनॉमियल इक्वेशन। So you can see that 3 points जब आपके पास होंगे, 3 control points, you will get a quadratic curve। Quadratic क्यों बोला? Because इसकी डिग्री 2 होगी। दो कंट्रोल पॉइंट्स के केस में you will get a linear curve, right? And when you have 4 control points, 4 control points का मतलब है 4 control points है तो पॉलिनॉमियल की डिग्री एक कम, मतलब 3। तो आपके पास क्यूबिक कर्व आएगा, हाईएस्ट डिग्री x की 3 होगी उसमें। कोई एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, कुछ एक्स का भी टर्म होगा और कोई आपके पास एक कांस्टेंट भी होगा। इनसे मिलके आपकी एक इक्वेशन बनेगी जो ये कर्व डिफाइन करेगी, ठीक है। इसका कुछ कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कुछ कोफिशिएंट होगा, वाई आपकी एक्स टर्म का कुछ कोफिशिएंट होगा, और ये सी डिफाइन कांस्टेंट, ठीक है। यू गेट समथिंग लाइक दिस। these forms can vary, जो भी आपकी कंट्रोल पॉइंट है वो उसके हिसाब से, ठीक है। ये जो आपकी इक्वेशंस जो भी आएंगी ना। द थर्ड थिंग इज, पहला था कंट्रोल पॉइंट्स जो है वो कर्व की शेप को गवर्न करते हैं। दूसरा, ये कर्व फर्स्ट और लास्ट पॉइंट से पास होगा पीजियर के लिए। पॉलिनॉमियल इक्वेशन जो है वो नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट से एक कम आएगी, ठीक है। पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट डिग्री। जो चौथी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो आपकी ये है कि ये जितने भी कर्व्स होंगे आपके, दे विल बी कंटेन्ड इन द कॉन्वेक्स हल ऑफ द कंट्रोल पॉइंट। कॉन्वेक्स हल का मतलब है, इमेजिन मुझे रबर बैंड वाला एग्जाम्पल दिया था, तो कंट्रोल पॉइंट्स के चारों तरफ आप कौन सा पॉलीगन, टाइटेस्ट पॉलीगन कौन सा ड्रॉ कर सकते हो सो दैट इट सराउंड या कंप्लीटली रैप्स या ब्लैंकेट्स ऑल द कंट्रोल पॉइंट्स। डेफिनेटली अगर मैं चारों कंट्रोल पॉइंट 1 2 3 4 को ज्वाइन कर दूं तो ये जो पॉलीगन आएगा तो ये इसका आप कह सकते हो टाइटेस्ट बाउंड होगा, बाउंडिंग पॉलीगन है। 4 डिग्री का ही, 4 वर्टिसेस का ही मैंने पॉलीगन ले लिया जो
इस पॉलीगन ऐसा लिया है जिस पॉलीगन के वर्टिसेस आपके कंट्रोल पॉइंट्स है, ठीक है। 3 के केस में फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल ले लिया। ये क्यों मैं डिफाइन कर रही हूँ, क्योंकि ये पॉलीगन्स हैं, इन्हीं के अंदर आपका ये कर्व लाई करने वाला है। तो ये होगा एरिया जो ये स्पेस में ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। And these curves are always going to lie inside the convex hull of these polygons. Convex hull मतलब ये अंदर के एरिया में, इससे ये बाहर कर्व ड्रॉ हो सकता है, इससे ये बाहर कर्व नहीं, ये हमेशा इस पॉलीगन के अंदर रहेगा। अगर ये 4 कंट्रोल पॉइंट्स थे तो मैंने ये पॉलीगन ड्रॉ किया, तो ये कर्व इसी एरिया में डिफाइन होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो 4 प्रॉपर्टीज आपके पास आ गई, सबसे इम्पोर्टेंट 4 प्रॉपर्टीज। पहला, कंट्रोल पॉइंट्स से डिफाइन होता है कर्व, कंट्रोल करते हैं कंट्रोल पॉइंट्स इसकी शेप। दूसरा, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट से गुजरता है। थर्ड इज दैट द पॉलिनोमियल इक्वेशन की जो आपकी डिग्री होगी फॉर द कर्व दैट यू हैव, that will always be one less than the number of control points for your curve। और फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये जो आपके कर्व्स है, दे आर ऑलवेज कंटेन्ड इन द कॉन्वेक्स हल ऑफ द डिफाइंड कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है। ऐसी दिस दिस यू कैन सी, देखो कर्व कभी भी इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, कंट्रोल पॉइंट्स को अगर मैं ऑल्टर करती हूँ तो मेरे कर्व की शेप चेंज हो जाएगी। अब देखो, आई एम गोइंग टू चेंज द पोजीशन ऑफ द कंट्रोल पॉइंट्स, so you see the shape of the curve is also getting changed, right? And you see, if I join a polygon, या मैं पॉलीगन ड्रॉ करूँ इस वर्टेक्स से इन चारों वर्टिसेस को ज्वाइन करते हुए, मेरा कर्व कभी भी उस पॉलीगन के बाहर नहीं जाएगा। अगर मैंने 2 और 3 कोइंसाइड करा दिए तो अब आपके पास नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स कितने आ गए, 3। और देखो आपके पास क्वाड्रेटिक कर्व मिल गया। जैसे ही मैंने 4 पॉइंट्स करे आपको क्यूबिक कर्व मिल गया। जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाती जाऊंगी, वैसे वैसे मुझे ये वेरिएंस जो है, ये शेप में जो ये चेंजेस है, ये और मिलते जाएंगे, ठीक है। बट इट्स नॉट ऑलवेज, इट्स नॉट वाइज टू डू से कि इट्स नॉट मतलब सजेस्ट नहीं किया जाता है, इट्स नॉट अ वाइज स्टेप टू इंक्लूड मोर एंड मोर पॉइंट्स। मतलब हमेशा इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जितने ज़्यादा कंट्रोल पॉइंट्स होंगे उतना आपका कर्व अच्छा होगा। अगर एक कर्व के लिए फिर वही बात है, अगर आपने 50 पॉइंट्स डिफाइन कर दिए तो आप ये भी तो सोचो 50 पॉइंट्स के लिए आपकी पॉलिनॉमियल इक्वेशन है वो 49 हाईएस्ट डिग्री होगी उसकी। तो x रेज टू द पावर 49 फिर 48 47 एंड सो ऑन, आपके पास इतने सारे टर्म्स आएंगे, या हाईएस्ट डिग्री वाली भी होगी। इसको कंप्यूट करने के लिए देखो कितने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रिक्वायर्ड होंगे, तो अननेसेसरी में आप कॉम्प्लिकेट करके अपनी कैलकुलेशंस बढ़ा रहे हो। तो जो बेस्ट देखा गया है वो नॉन प्लेनर के लिए, नॉन प्लेनर मतलब स्ट्रेट लाइन आए, कर्व जो आए, उसके लिए आपके पास 3 और 4 डिग्री की जो है, और यूजुअली ये 4 नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स हैं, इन्हें अच्छा ऑप्शन माना जाता है, ठीक है। तो हमेशा आप देखोगे डिटर्मिनेशन क्यूबिक जो है आपके पीस वाइज क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स जो है आप उनको यूज कर रहे हो, ठीक है। द मेन वैल्यू ये आप देख चुके हो, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ पॉइंट्स जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे आप कोई सा भी यहाँ पे देखो, जैसे ए कैरेक्टर ड्रॉ कर सकता है, 4 कंट्रोल पॉइंट से आपने एक कार की शेप एक ड्रॉ कर दी है, सो यू कैन डिजाइन प्रैक्टिकली एनीथिंग। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने कहा था बीजो कर्व्स के लिए, पहला आपका कंट्रोल पॉइंट्स था। कंट्रोल पॉइंट से देखा आपने कि कितनी सारी प्रॉपर्टीज आपकी 4 निकल के आ गई थी। जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज 4 कंट्रोल पॉइंट्स के बेसिस पे ही मैंने 4 की 4 प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी। दूसरी चीज है टैंजेंट्स। टैंजेंट्स के लिए देखो, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये हम कर्व पे एक एक पॉइंट प्लॉट कैसे कर रहे हैं। इफ यू रिमेम्बर, अभी बताया था u की वैल्यू जो है वो आपका 0 से 1 तक मिलता है। तो 1 वैल्यू जब u की रखोगे तो आपको सेकंड मेन पॉइंट मिलेगा। जब u की वैल्यू 0 रखोगे, या इस t ले लेते हैं पैरामीटर, t इज इक्वल टू 0 जब मैंने पुट किया तो मुझे फर्स्ट ये वाला पॉइंट मिला p1। और जब मैंने t की वैल्यू 1 रखी तो आएगा पॉइंट p2। अगर मैंने t की वैल्यू 0.5 रखी तो मुझे लगेगा। तो एक तरीके से t, आप बताओ क्या इस लाइन को डिवाइड नहीं कर रहा है?
Aren't you getting the ratios for that point? अगर मैंने 1/4 लिया था तो ये 1/4 है आपके पास डिस्टेंस और ये 3/4 डिस्टेंस है ना? तो ऐसे ही आप ये कर्व कैसे ड्रॉ करोगे? अब यहाँ देखोगे और एक ये जो ब्राउन लाइंस आपको दिख रहे हैं, ब्राउनिश येलोइश लाइंस जो है, अब देखो ब्राउन लाइंस का काम क्या है यहाँ पे, मैंने 1 से 2 तक एक लाइन ड्रॉ करी और सेकंड कंट्रोल पॉइंट से थर्ड कंट्रोल पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करी है। इन दैट केस आप देखो एक आपके पास, अच्छा आई विल रन दिस एंड यू कैन सी हाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट दिस ग्राफ। सेम कॉन्सेप्ट याद रखना, वी गोइंग टू प्लॉट यूजिंग द tangents and these tangents are going to cut these two lines 1 2 and 2 3. Let's just say this is L1 line and let's just say this is L2 line. So if you have a tangent right here, tangent at this point, ठीक है, ये इस पॉइंट पे tangent है, ठीक है, तो यू कैन सी ये जो आपका डिस्टेंस होगा, से दिस इज एट डिस्टेंस d, ओके, और ये जो डिस्टेंस होगा ये सेम होगा, दिस इज आल्सो द डिस्टेंस d। मतलब अगर मैंने d 0 0 दिया है तो आपकी जो फर्स्ट पॉइंट पे tangent होगी वो यही लाइन हो जाएगी, ठीक। और जब मैंने d ये 1 दिया है तो आपकी जो ये लाइन होगी इस पॉइंट के लिए d1 मतलब लास्ट पॉइंट मुझे मिल रहा है ये वाला पॉइंट, तो इसकी tangent यही वाली लाइन हो जाएगी। सारा का सारा आपका ये जो कॉन्वेक्स हल है, देखो ये tangents एक तरीके से एंड पॉइंट्स देखना इंटरसेक्ट करते हो या आप कह सकते हो सारे मिलते हुए। लेट मी रन first and you can see t की value as usual, this is my parameter, so this is going to vary from 0 to 1, ठीक है, t पैरामीटर है। और अब इस कर्व के लिए देखो ये t की वैल्यू 0 यहाँ पे है और t की वैल्यू 1 पे मुझे ये वाला थर्ड पॉइंट मिलेगा, थर्ड कंट्रोल पॉइंट जिससे कि इसका एंड पॉइंट है। अब देखो ये बीच के पॉइंट्स कैसे प्लॉट हो रहे हैं, फिर से याद रखो t की वैल्यू 0 से 1 तक जा रही है, तो यू कैन सी दिस tangent, see t is equal to 0.445 लगभग बीच में, तो यू कैन सी दिस tangent, और अगर ये डिस्टेंस आप कंपेयर करोगे तो ये सेम होगा। ऐसे ही लाइन का बचा हुआ ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जो है ये प्रोपोर्शनेट रहेगा एंड यू कैन सी कि जो जो tangents देखो इस पॉइंट पे मिलती जा रही है इन सबसे मिलकर आपका कर्व ड्रॉ हो जाएगा। 0 से 1 तक था, 0.72 के लिए आपको ये वाला पॉइंट मिला, 0.895 के लिए आपको ये वाला पॉइंट मिला, t is equal to 1 पे आपको लास्ट पॉइंट मिला, तो आपका पूरा का पूरा कर्व ड्रॉ हो गया। See this once again, this is the tangent at each point, ये आपकी कॉन्वेक्स हाल में लाई कर रहा है, और देखो कभी भी आपका ये कर्व जो है ये बाहर नहीं जाएगा, कॉन्वेक्स हाल में आपका जो आपके पॉइंट्स के बीच में है यही लाई करता है, यही ड्रॉ हो जाएगा। एंड अगेन पैरामीटर जो आपने लिया है पैरामीट्रिक फॉर्म में है, दिस इज अ पैरामीट्रिक कर्व, तो बेजल कर्व आपका प्लॉट हो गया फॉर वैल्यूज सॉरी t is equal to 0 to 1, okay। So for different values of t, you see this is for 0.5, 0.25, 0.25, जो इसकी tangent होगी यही इसका ये जो ये रेशियो है आपको ये यहाँ पे, और ये वाला ये जो डिस्टेंस है this will be the same, so you can obtain or you can get get any point on the curve, okay। Similarly for four control points you can see the curve getting plotted, you have now four control points, so you're going to get a cubic curve in this case, right। and p की पैरामीटर की वैल्यू है 0 से 1 तक कैरी करा रही हूँ और मुझे हर पॉइंट जो है कर्व पे आराम से मिल जाएगा, ठीक है। now let's see how questions are asked in exam, और यहाँ पर एक ही टू में आ भी चुका है ये वाला क्वेश्चन, I'll forward a question bank to you, हर यूनिट वाइज इसमें यूनिट वाइज अरेंज है क्वेश्चंस, तो उसमें भी ये गिवन है, so you practice this on your own, that question bank has been designed in a way that it includes all the questions from the previous papers and some other UIPs also, so I'll share the solution to you if you have any doubt in any of the question, but you kindly go through that question bank because it is very important, all the important questions which are asked in your ATT examinations are put in there, I put all the questions जितने भी आपके previous year में आए हैं, you go through that question bank, at least you will get an idea which questions are asked and which questions are not,
and whichever source you are referring to in case you don't have books या notes नहीं है जो भी है वैसे आपकी पीपीटी में मोस्टली सब गिवन है and trying to find out if अगर कोई पॉइंट मिसिंग है जैसे इंटरपोलेशन वाला ये टाइप्स ऑफ कर्व इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वाला था आई डोंट रिमेम्बर आपकी इसी स्लाइड में वो है या नहीं है तो ऐसे अगर कोई और टॉपिक मुझे याद आता है तो आई सेंड द नेक्स्ट ठीक है अब सी you have four control points you have a question for this is for Bezier curve only okay this is for Bezier you have four control points A B C D A B C D आपके defined है this is your अच्छा we're going to number or index these points starting from 0 so you have your points from P0 to P3 ठीक है P0 P1 P2 P3 चार control points है चार कंट्रोल पॉइंट्स का मतलब है 1,1 का यहाँ आएगा 2,2 का यहीं 6,4 एंड 4,3 और 6,4 समझ लो तो इसके बीच में कहीं एस कर्व ड्रॉ हो जाता है ठीक है रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर कर्व इज गोइंग टू पास थ्रू द फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट ठीक है बीच वाले से करें ना करें it has to pass through it is important that it's very essential that it passes through the first and the last points नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स कितने हैं मेरे पास चार तो डिग्री क्या आएगी पॉलिनोमियल की अगर मुझे इक्वेशन इस कर्व की ऑब्टेन करनी है मेरा काम क्या है इस कर्व की इक्वेशन ऑब्टेन करना है दो तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन या तो आपको कर्व इक्वेशन ऑलरेडी गिवन होगी या आपको डिराइव करने के लिए बोल देंगे या पॉइंट्स गिवन होंगे आपको कर्व ड्रॉ करने के लिए आ जाएगा तो डरना नहीं है तो कुछ भी नहीं है इसमें बहुत सिंपल है सबसे पहले नंबर ऑफ जो पॉइंट्स हैं उसे डिटर्मिन करो कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं चार गिवन है क्वेश्चन में चारों के आपके पास पॉइंट्स भी हैं अगर ये आपका पी नॉट है तो ये आपका एक्स नॉट और वाई नॉट हो गया अगर ये पी वन है तो ये एक्स वन वाई वन सिमिलरली अगर ये पी टू है एक्स थ्री वाई थ्री एंड इफ दिस इज योर sorry एक्स टू वाई टू एंड इफ दिस इज योर पी थ्री these points will be your एक्स थ्री वाई थ्री एक्स थ्री की वैल्यू सिक्स है वाई थ्री की वैल्यू फोर है क्यों क्योंकि अभी ये काम आएगा ये नोटेशन इसलिए बताइए डिग्री थ्री है तो आपके पास जो पॉलिनोमियल आएगा डिग्री कहाँ से निकली कंट्रोल पॉइंट माइनस वन कंट्रोल पॉइंट्स चार थे डिग्री थ्री का मेरे को मतलब क्यूबिक कर्व एक मिलने वाला है जिसकी मैं इक्वेशन अभी डिराइव करने वाली हूँ इक्वेशन बीजियर कर्व की इस फॉर्म में होती है डोंट गेट कंफ्यूज्ड अगर आपकी स्लाइड्स में कोई और पैरामीटर लेके दिया हुआ है या नोटेशन डिफरेंस है यूजुअली दो टर्म्स गिवन होंगे आपको स्टैंडर्ड टर्म्स का मतलब समझो नोटेशन अगर कहीं भी डिफरेंट है बुक में या नोट्स में या स्लाइड्स में डोंट गेट कंफ्यूज एक फंक्शन है आपके पास जो पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है यू या टी कुछ भी ले लो अब आपको क्या करना है हर पॉइंट के लिए चारों पॉइंट के लिए आपको दो टर्म्स मल्टीप्लाई करने हैं दो टर्म्स मतलब सबसे पहला हो गया वो पॉइंट खुद पी आई पॉइंट अच्छा एक्स के लिए आप अलग इक्वेशन कैलकुलेट करोगे और वाई के लिए अलग क्योंकि हम एक्स को निकालेंगे यू के टर्म्स में एक्स अब यू का फंक्शन होगा और वाई आपका वाई भी आपका यू का फंक्शन होगा तो इसी इक्वेशन को यूज करके मैं एक्स और वाई इन टर्म्स ऑफ यू दो दो इक्वेशंस में अभी कैलकुलेट करूंगी तो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं पहला टर्म है आपका कंट्रोल पॉइंट में आप ये वाली वैल्यूज रखोगे अगर मान लो मैं अभी सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लूँ एक्स यू जो है ये वाली इक्वेशन अभी निकाल रही हूँ तो मतलब अब मैं जो ये पॉइंट्स मल्टीप्लाई करने वाली हूँ पहला वाला जो टर्म होगा ये x की वैल्यूज होंगी x की वैल्यूज एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये वाली वैल्यूज तो पी आई में आएगा पी आई आई कहाँ से जा रहा है जीरो से एन तक जीरो से एन तक ये है जो मेरा जीरो वन टू थ्री जीरो वन टू थ्री चार पॉइंट्स हैं हर कंट्रोल पॉइंट के लिए अब मैं इसका समेशन करूंगी तो पहला वाला कंट्रोल पॉइंट हो गया मेरा एक्स नॉट इंटू जो भी ये टर्म आएगा प्लस दूसरा वाला टर्म हो गया एक्स वन इंटू जो भी ये टर्म आएगा उस कोरिस्पॉन्डिंग सेकेंड वाले एक्स वन के लिए प्लस एक्स थ्री इंटू बी थ्री जो भी आएगा प्लस एक्स फोर इंटू द सेकेंड टर्म चार टर्म्स मिलने वाले हैं ये तो पक्का है और पहला वाला टर्म जो मल्टीप्लाई होगा अगर x के लिए निकाल रही हूँ तो वो x कोऑर्डिनेट्स होंगे अब दूसरा बी आई एन ये जो आपका ये है फंक्शन बी यू बी फंक्शन ऑफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ यू
दिस इज नोन एज योर ब्लेंडिंग और बेसिस फंक्शन। इसको बोलते हैं हम ब्लेंडिंग या बेसिस फंक्शन। ब्लेंडिंग और बेसिस फंक्शन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपके पास तीन टर्म्स हैं। पहला तो हो गया आपका बी आई कॉमा एन है इंडेक्स में, ये सबस्क्रिप्ट में यू हैव आई कॉमा एन। आई डिनोट कर रहा है कौन सा पॉइंट है, 0 1 2 3। एन डिनोट कर रहा है कंट्रोल पॉइंट के लिए। तो अभी मैं एन की वैल्यू जो है दैट आई टेक दिस एन एज द डिग्री। कंट्रोल पॉइंट 4 है ना, तो आई टेक दिस एज द डिग्री। हाईएस्ट डिग्री कितनी जाएगी? याद रखो हमेशा आपका जो पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट डिग्री कंट्रोल पॉइंट से एक कम होगी। तो यहाँ जो मैं एन ले रही हूँ, इसीलिए आई प्रेफर द नोटेशन number of control points to be n plus 1 and the degree of the polynomial to be n plus 1 minus 1 which will be n। तो n अगर डिग्री है तो यहाँ पे n डिग्री पुट करोगे आप, तो 0 1 2 3 तक जाएगा। तो मतलब 0 1 2 3 चार टर्म्स मिलेंगे। उसमें से आप पहला टर्म जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो x कोऑर्डिनेट्स या y कोऑर्डिनेट्स है। दूसरा टर्म ब्लेंडिंग फंक्शन है। ब्लेंडिंग फंक्शन सबसे पहला निकालते हैं। चलो i की वैल्यू 0 रखी, b सबस्क्रिप्ट में 0, और डिग्री कितनी है, ये हमेशा सेम रहेगा, ये वाला सेकंड वाला इंडेक्स, ये है आपका 0 3। तो b 0 3 की क्या वैल्यू आएगी आपके पास? इट विल बी, सबसे पहला हो गया इसका इसका ये बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालेंगे सबसे पहले। बाइनोमियल कोफिशिएंट n फैक्टोरियल अपॉन i फैक्टोरियल अपॉन n माइनस i फैक्टोरियल। n की वैल्यू थी 3, i की वैल्यू है 0। तो लेट्स कैलकुलेट द ब्लेंडिंग फंक्शन फॉर द फर्स्ट टर्म। चार टर्म्स ऐड करने हैं, पहले वाले टर्म के लिए जो x नॉट से मल्टीप्लाई होने वाला है, ये टर्म कैलकुलेट करते हैं। तो n फैक्टोरियल विल बी 3 फैक्टोरियल अपॉन i फैक्टोरियल विल बी 0 फैक्टोरियल 1 इंटू n माइनस आई 3 माइनस 0 3 फैक्टोरियल। तो पहला वाला टर्म क्या हो गया, ये बाइनरी कोफिशिएंट आपके पास 1 आ गया, इंटू u रेज टू द पावर i। u was your parameter, तो 1 इंटू राइट इट एज u रेज टू द पावर i, u की पावर i की वैल्यू थी 0, तो u नॉट u u रेज टू द पावर 0 सॉरी, इंटू 1 माइनस u रेज टू द पावर n माइनस i 3 माइनस 0 विच विल बी 3। तो पहला वाला टर्म का ब्लेंडिंग फंक्शन आपके पास आया, दिस विल बी 1 1 माइनस यू होल क्यूब। ओके, ये अगर आप उस सीरीज को जो फॉर्मूला आप ऊपर दिया है इसको एक्सपांड करोगे तो 0.0 पी नॉट इंटू ब्लेंडिंग फंक्शन 0 3 के लिए, फिर 1 3 के लिए ब्लेंडिंग फंक्शन 0.1 के लिए, 0.2 0.3 और ब्लेंडिंग फंक्शन 2 3 3 3। पहला वाला ब्लेंडिंग फंक्शन हमने निकाला, ये है आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट 3 0 के लिए। ये आपने निकाला 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 n फैक्टोरियल अपॉन i फैक्टोरियल इंटू n माइनस i फैक्टोरियल इंटू u रेज टू द पावर i इंटू u रेज टू द पावर n माइनस i। ठीक है, तो यू गॉट द फर्स्ट ब्लेंडिंग फंक्शन है 1 माइनस यू होल क्यूब। ऐसे ही सेकंड वाले के लिए 1 3 है आपका ब्लेंडिंग फंक्शन। दिस टर्म वी आर कैलकुलेटिंग दिस टर्म व्हिच विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस x1 की वैल्यू से जो होगा, अगर मैं x u की वैल्यू निकाल रही हूँ, और अगर वाई यू की वैल्यू निकालूंगी, सॉरी एक्स यू, अगर वाई यू निकालूंगी तो आई पुट y1 है सी एन कॉमा आई। तो ये हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 अपॉन 1 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 विच इज 2 फैक्टोरियल। So I can write 3 factorial as 3 into 2 factorial. These two will get cancelled and we will left with 3। तो पहला कोफिशिएंट आ गया बाइनोमियल कोफिशिएंट 3। उसके बाद u रेज टू द पावर i की वैल्यू थी अब 1, तो u रेज टू द पावर 1 into 1 minus u n minus i, 1 minus u raised to the power n minus i। n की वैल्यू है 3 3 minus 1 मतलब 1 minus u का होल स्क्वायर। सेकंड ब्लेंडिंग फंक्शन आपके पास आ गया 3u into 1 minus u होल स्क्वायर। ऐसे ही आप सेकंड आपका थर्ड और फोर्थ ब्लेंडिंग फंक्शन कैलकुलेट करोगे। this will be again this n comma I u raised to the power I into 1 minus u raised to the power n minus I। सेम फॉर्मूला यूज करके आपने चारों ब्लेंडिंग फंक्शंस निकाल लिए। अब क्या करोगे, पी यू की जो आपके पास फाइनली वैल्यू आई या इक्वेशन आई वो ये आएगी। सारे ब्लेंडिंग फंक्शंस को देखो मैंने यहाँ पुट कर दिया है विद देयर कोफिशिएंट्स जो कैलकुलेट किए थे।
पहला 1 - u का होल क्यूब था, सेकंड वाला 3u1 - u होल स्क्वायर था। अब देखो पूरी की पूरी जो आपकी इक्वेशन है वो u के टर्म्स में आ गई है। एक ही पैरामीटर है जिस पे डिपेंड कर रही है। अब इसमें हमारा काम क्या रह गया है, वंस यू हैव दिस इक्वेशन, अब आपको एक्स यू और वाई यू निकालने हैं। तो आप इसमें क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट्स पहले पुट करोगे सारे। तो आपके पास एक्स यू का एक इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट सारे y0 y1 y2 y3 पुट करोगे, तो देखो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि पॉइंट्स आपको गिवन होने वाले हैं। ठीक है, तो यू विल गेट द इक्वेशन फॉर वाई यू एज वेल। यहाँ पे मैंने एक्स नॉट की वैल्यू क्या थी, मेरा 1,1 पहला पॉइंट था, तो पी नॉट की वैल्यू मैंने एक्स नॉट 1 है मेरा, तो यहाँ मैंने 1 पुट कर दिया। ऐसे ही मैंने x1 x2 x3 सबको पुट किया, और this is the equation which I obtained after inserting the values of p0 p1 p2 p3। Similarly मुझे y के लिए भी इक्वेशन मिल जाएगी। This is the equation for yu, this is the equation for xu। Once I have these equations, now I can plot my curve। काम खत्म। इसके बाद आपको क्या करना है, बस इस u की वैल्यू 0 से 1 तक लेके जानी है। सबसे पहला पॉइंट देखो 0 रख के देखते हैं। Once you put 0 here, x की वैल्यू निकालते हैं, u is equal to 0 पे क्या आएगी, 1 minus 0 the whole cube, this will be 1, so 1 plus 0 into something is 0, 0 into something 0, 0 into something 0। तो पहले वाले x की वैल्यू क्या आ गई, 1। y वैल्यू निकालती हूँ मैं सेम, क्योंकि वही सेम मुझे u की वैल्यू x और y दोनों के लिए रखनी है। 1 minus u whole cube, 1 minus 0 whole cube is 1, 9 into 0 0, 4 into 0 0, तो y की वैल्यू भी कितनी आई, 1। अब देखो x और y की दोनों की वैल्यू मेरे पास आई 1, सॉरी 1,1, 1,1 आई मेरे पास दोनों की दोनों वैल्यूज। Isn't this your first point? You've got your first point, फर्स्ट एंड पॉइंट जो था कंट्रोल पॉइंट्स में से। अब u इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं, जो लास्ट आपका वो है वैल्यू u की। तो 1 पुट करके देखते हैं, 1 minus 1 is 0। दिस वन आई एम कैलकुलेटिंग द x वैल्यू फॉर u इज इक्वल टू 1। ठीक है, u की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ 1। x आएगा आपका, x विल बी इक्वल टू 1 minus 1 0, 1 into 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, so this will be 6। ये टर्म 1 minus 1 0 हो गया, यहाँ पे 1 minus 1 0 हो गया, तो इसकी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 1 minus 1 0 हो गया, u मैंने 1 पुट किया है, तो x आपका 6 हो गया। अब y कैलकुलेट करती हूँ, u इज इक्वल टू 1 के लिए 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, 4 into 1 cube, so this is not y, this is 4u cube। okay, so y will be equal to 4। notice that this is your last point। तो आपने एक प्रॉपर्टी बीजियर कर्व्स की वेरीफाई कर ली, that it is going to pass through the first and the last point जो आपके पास है। तो u की वैल्यू 0 और 1 पुट करके देखो, तो आपको फर्स्ट और लास्ट पॉइंट मिल गई। तो आपने वेरीफाई भी कर ली एक प्रॉपर्टी कि हाँ आपका कर्व जो है इट पासेस थ्रू द टू एंड पॉइंट्स। बीच वाले पॉइंट्स जो है आप उस पर निकाल के देख सकते हो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, गेट समथिंग डिफरेंट, यू गेट समथिंग अदर देन दीस p1 एंड p2। निकाल के देख लेना और वैल्यूज यू कैन अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, 0 और 1 के लिए तो निकालो। अब आपका u की वैल्यू 0 से 1 तक वेरी करती है, तो 0.1, अगर इफ इट्स 10 मार्क्स क्वेश्चन, यू कैन कैलकुलेट इट फॉर 0.1 के इंटरवल से आप u की वैल्यू 0.1 0.2 0.3 0.4 करके आप x और y की वैल्यूज निकाल सकते हो, या 4-5 पॉइंट्स के लिए भी निकाल दोगे तो इट विल बी इनफ। प्लॉट हो जाना चाहिए आपका कर्व, प्लॉटिंग के लिए आता है बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे 0.2 का इंटरवल लिया है, तो u की वैल्यू मैंने पहले 0, फिर 0.2 0.4 0.6 0.8 और फिर फाइनली 1 पुट करी है। तो इन 6 पॉइंट्स के लिए मुझे करस्पॉन्डिंग ये x और y की वैल्यूज मिली थी। अब इनको अगर आप प्लॉट करोगे तो आपको कुछ ऐसा क्यूबिक कर्व मिल जाएगा। तो ये आपका बेजियर कर्व ड्रॉ हो गया है गिवन फॉर 4 गिवन एंड पॉइंट्स। इसी क्वेश्चन में हम लोगों ने देख लिया कि पॉइंट्स आपके कैसे गवर्न करते हैं शेप। इसी में आपका डेरिवेशन भी आ गया, ब्लेंडिंग फंक्शन भी बता दिया, पैरामीट्रिक आपने इक्वेशंस भी निकाल ली एक्स और वाई की, कर्व के भी पॉइंट्स आपने कैलकुलेट कर लिए और कर्व आप ड्रॉ भी कर लोगे आसानी से वंस यू हैव दीस एक्स एंड वाई वैल्यूज। तो ये आपका बीजियर कर्व खत्म।
अगर ये समझ में आ गया आपको आराम से, आई सेंड दिस पीडीएफ इन योर ग्रुप, इसको पढ़ो। इसमें पूरा है, डेरिवेशन से लेके आप प्रॉपर्टीज भी देख सकते हो। इसी कर्व को आप जब ड्रॉ करोगे तो इन 4 पॉइंट्स जो भी आपके कंट्रोल पॉइंट्स होंगे उनको ड्रॉ करके देखना, आपका कर्व इसी के अंदर आएगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी के, पहली प्रॉपर्टी होगी कि फर्स्ट और लास्ट पॉइंट से ये आपका पास करेगा। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट नेसेसरी है। दूसरा, ये कंट्रोल पॉइंट्स गवर्न करते हैं इसकी शेप। कैसे? ऑल्टर तो करेंगे ही करेंगे, ये जो आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलेगी वो नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स से एक कम, क्यूबिक वाली मिली है। हमने अभी देखा हाईएस्ट डिग्री 3 मिली थी हमें। ठीक है। तीसरी चीज आपकी थी कि आपका ये जो कॉन्वेक्स हल में कंटेन करता है, तो वो भी अगर आप सारे इनको पॉइंट्स को ज्वाइन करके पॉलीगन जो ड्रॉ करोगे, देखो उसी के अंदर लाई करेगा आपका एक कर्व। तो सारी प्रॉपर्टीज भी आप यही इसी कर्व ड्राइंग से जो आप ड्रॉ करोगे, इस ड्राइंग से आप डिटरमिन कर सकते हो, याद करने की भी जरूरत नहीं है। बस आपकी जो यू की वैल्यूज है वो 0 से 1 तक वैरी करेगी। एंड दिस इज द क्वेश्चन दैट यू गेट। कुछ क्वेश्चंस में आपको क्या गिवन होगा, सीधा सीधा ये इक्वेशन आपको दे रखी होगी। अगर ये नहीं निकल पाई है तो ये जो यू की टर्म जो हम लोगों ने निकाली है, एक्स और वाई है ना, तो इसकी जगह आपको या तो यू गिवन होगा या फिर ये वाली जो पी यू के फॉर्म में है, ये वाली इक्वेशन गिवन होगी। तो यू नो हाउ टू प्रोसीड फ्रॉम हियर। सिंपली आपको पॉइंट्स जो है x1 y1 जो भी है पुट करने हैं एक्स और वाई के लिए अलग अलग, और उसके बाद यू की वैल्यू पुट करके यू कैन कैलकुलेट एक्स वाई की वैल्यूज, तो यू कैन ड्रॉ योर कर्व। दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। If you have any doubt, you can ask me. Okay, and stay online for a minute. I have to take your attendance. Do you have any doubt in this? Okay then. Thank you.